you get distracted. Sometimes you feel that I have enough, but that's a very temporary feeling. You feel it, I have enough. कुछ दिन बाद फिर आपको realize होता है. Success is very subjective to people. Yeah. You know, for a lot of people, focusing on the career is right now at that particular moment is success. Correct. For few people I've met, success is about taking care of their families and being with them and spending that time with their families instead of spending work space में इतना time. वो कुछ लोगों के लिए सक्सेस होती है कि हम काम में सिर्फ 2 घंटे देते हैं, बाकी हम 22 घंटे फैमिली के साथ. So success again is very very subjective. I have faced rejections. I have made mistakes. But one thing I have never done is that to lose faith in me and lose my heart. Honestly, rejection हमारे लिए normal था. बहुत normal है. Acceptance हमारे लिए नया चीज था. Wow. कि हम accept हो तो गए. रिजेक्ट होते एक आध में आए, फिर हमने वहाँ पे 100% दिया. What was your earliest Bollywood dream? तो मैं एक रियलिटी शो की स्टेज पे जाके ऑडिशन देना चाहता था. फिर अगला ड्रीम था फाइनल्स में जाना. फिर उसके बाद का ड्रीम था जीतना. वो नहीं हो पाया पूरा. मेरा सपना और मेरा ड्रीम ना स्टार्टिंग में यही था टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर माय कंट्री. क्या बात. इन जिम्नास्टिक्स. Have you ever turned down a safe role for something bolder? कुछ तो सेफ छोड़ के बोल. So I think I never wanted to play safe. I never played safe. Hi, this is Jan. You're watching me on Galata Media. So today we are with the cast of Hai Junoon, Dream, Dare and Dominate. Priyank, Siddharth and Sumit. Hi guys. Welcome. Hi. How are you? कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है है. जुनून. बता दो, मैं है पूरा जुनून देख चल रही रहा है. थी. I was just watching this movie. पिट्स में देख रही हूँ. स्टार्ट किया है जहाँ पे आपको आपके पापा आकर थप्पड़ मारते हैं that you stop doing this thing, but आपका एक ड्रीम रहता है. बट मैं आप तीनों से ही पूछना चाहूँगी कि you know there is a saying success is not about talent but it's fire with you, है ना? What does this mean to your character in this show? I mean, see, first of all, this phrase I totally agree to what you said about success. But again, success is very subjective to people. Yeah. You know, for a lot of people, focusing on the career is right now at that particular moment is success. Correct. For few people I've met, success is about taking care of their families and being with them and spending that time with their families instead of spending work space में इतना time. वो कुछ लोगों के लिए success होती है कि हम काम में सिर्फ 2 घंटे देते हैं, बाकी हम 22 घंटे family के साथ. So success again is very very subjective. Okay. So now, but taking from like talking about that aspect where for people like us at this moment where our work is, you know, something we work hard so much for whatever to entertain you guys. So I mean, मैं question ही भूल गया. Success is not about talent but it's fire Yes, with you. my bad. What does So this mean it to is your about character? it is again coming back. ये fire बहुत जरूरी होती है हर चीज के लिए. एक बहुत strong element है अगर fire के बारे में बात करें, जिसने actually पूरा का पूरा संसार ये universe बना रखा है. तो fire is actually one of the very very important things you need to have within you in order for you to you know, exchange or maybe let's say change your life, you know, and tell the stars out there to keep sending the energies to you so that it just keeps on, you know, rotating and keeps on going and going and going seriously. Yes. What about you, Siddharth? So see, when you talk about Bikram, so Bikram is a guy, you know, comes from a small town, Jalandhar, Yes, yeah. with big dreams, Yes. and he's also chasing his dreams. Yes. And I believe a lot of young people also can, you know, see themselves in Bikram's story, because Bikram is a character who comes from a small city to a big world where he's trying to fit in. Correct. And when you try to fit in, you make a lot of mistakes. You face, you know, rejections. But what you will love about Bikram that he never loses his heart and loyalty towards his work, whatever he is doing. Yes. And music is his life. Yes. So he just want to achieve his dream. So, you know, what I love about Bikram is that his innocence, his purity, that whatever he does it with pure honesty. Definitely. Why I say that, you know, everyone can relate to this character, because we all are at the end chasing our dreams. Correct. And we all face rejections. We all, you know, make mistakes.
but one thing we try not to do is to give up. And I have also done the same thing in my journey also. I have faced rejections, I have made mistakes, but one thing I have never done is that to lose faith in me and lose my heart. That's it. Wow, that sounds. What First about of all, you? you asked a very good question. Yeah. And you said a very beautiful thing, that success is subjective, right? Subject. And what has success to do with the character? So my character actually goes through that phase where he tries to understand what is success for him. Right. And that is something which a lot of people don't understand. And वो भी चीज़ बहुत हो जाती है. Talking about Sebi, the character that I'm playing, I think what I love the most about this character is that nothing's in his favor. Right. If there is anything is in his favor, that's just his own people supporting him. Right. उनका प्यार. कुछ गिने चुने दोस्त और वही उसको सपोर्ट करते हैं. That's the thing that is in his favor. कुछ अपने लोग और उनका प्यार. और उसके साथ वो एक सक्सेस जो वो मानता है, सक्सेस जो उसने ठाना है, हाँ. जो आपको पता चलेगा पहले एपिसोड में कि क्या है, और फिर वो आप उसके साथ वो जो कोशिश करता है, अगेन एज इट्स इन द सेम इन हिज कैरेक्टर, कि हारना नहीं है, हार मिलते रहेंगी. अभी जैसे ये ड्रीम डेयर डोमिनेट है बराबर, बट इन रियल लाइफ एनी सक्सेस, इसके बीच में ना वो डॉट के बाद ना कुछ और चीजें आती है. ड्रीम, फॉल फॉल फॉल, यू डेयर टू राइज अप अगेन, And dog. fall 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 fall, and then you get up again, then you dominate, then you fall, then you again dream. Correct. That's what the journey is about Correct. in real life. और यही इस कैरेक्टर के लाइफ में भी हो रहा है. ये समझने की भी कोशिश करता है कि यार मेरे लिए सक्सेस एग्जैक्टली है क्या, मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में. There's a very important question that I think so we all go through. This is a very important question that also this character faces in the show. It's I think so amazing. But वो एक होता है ना कि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ से मैं एक बेहतर जगह पे जाना चाहता हूँ, अपने घर वालों को ले जाना चाहता हूँ. ये हम सब रिलेट करते हैं इस इमोशन से. ये उस किरदार में. करेक्ट. बट एक बार जब सक्सेस आ जाता है ना, वो जुनून चला जाता है मेरे ख्याल से कभी कभार, है कंफर्ट आ जाता और जिद्दी जो होता है ना, जब स्टार्टिंग आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब आप सक्सेस आपको मिल जाती है तो वो जुनून, वो जिद्दी, वो सब पर ना थोड़ा कम हो जाता है. कभी आप लोगों ने ये फेस किया? क्योंकि यू गाइस हैव डन अपने से सब कुछ खुद से इन इस इंडस्ट्री में, फ्रॉम नीच, फ्रॉम एवरीथिंग, बट कभी आप लोग के साथ ऐसा है वो जुनून या जिद्दी कम हो जाता है, यार चलो ठीक है? बिल्कुल होता है. मतलब दिन में आई थिंक रोज एक ना एक वो मोमेंट, पल मेरे साथ तो आता ही आता है जब लगता है कि यार कैसे, कब तक, क्यों, कहाँ, ये प्रश्न आते हैं दिमाग में. वेरी डीप. इस चीज के बारे में बात कर रहे हो आप? तो पूरी जिंदगी के बारे में कि भाई बैठे हैं यहाँ पे आज, बॉम्बे आ गए हैं. कभी कभी लगता है अच्छा शो भी आ रहा है, बट स्टिल वो होता ही होता है. बट अगेन यू हैव टू कम बैक to your grounds and you have to keep telling yourself. तरीके होते हैं फायर, by the way. फायर एक एलिमेंट ऐसा है, इस पे पूरी बातचीत हो सकती है, पूरा एक अलग से बात कर सकते हैं हम इस बारे में, बट वो तो हम नहीं करेंगे. बट ये है कि हाँ, फायर कैसे अंदर रहे, आपके जगी रहे, उसके कुछ तरीके भी होते हैं. मैं उन तरीकों पे नहीं जाऊंगा, बट हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि रहे, अपने आप को हमेशा याद दिलाता रहूँ कि जो करा है भूल जा. शो भी किया है, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो ये शो भी किया है, मैं उसी दिन जैसे रैप अप हो गया था, भूल जाओ, मैं ऑडियंस पे छोड़ता हूँ, ठीक है, भगवान पे छोड़ता हूँ और मेहनत पे छोड़ता हूँ, जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन अगला क्या है, अभी अगला क्या है, उसकी हंटिंग शुरू हो जाती है, यू नो. सो आई थिंक वो एक स्ट्रगल अलग ही है. मतलब नेक्स्ट काम क्या है ना. कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कि रिजेक्शन आप लोगों को मिला है एंड देन यू लाइक कि आगे, ऑफ कोर्स तीनों ही, मतलब हर कोई रिजेक्शन से गुजरता है, जो ऊपर भी है नीचे भी है सब, बट कभी आप तीनों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि रिजेक्शन मिला हो एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड देन यू गाइस आर लाइक मेरे को वापस से जीरो से स्टार्ट करना होगा फिर से? ऑनेस्टली रिजेक्शन हमारे लिए नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल है. एक्सेप्टेंस हमारे लिए नया चीज था. वाह, कि हम एक्सेप्ट हो गए. तो रिजेक्ट होते एक आध में आए, फिर हमने वहाँ पे 100% दिया. ऐसा तो जर्नी रहा है. टॉकिंग अबाउट वो जो एक मोटिवेशन चला जाता है, मुझे लगता है कि हर एक इंसान के ना अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, ऐसा इंसान अंदर होता है, वहाँ पे उसका ना एक ऐसा स्पॉट होता है जो उसको भी नहीं पता, ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहाँ से उसको भेदा जा सकता है, जहाँ पे उसको तोड़ा जा सकता है.
और आपको भी नहीं पता होता जब तक वो चीज आती नहीं आपके लाइफ में और आपको तोड़ देती है और डिस्ट्रैक्ट कर देती है, एंड यू आर नॉट रेडी फॉर इट, because if you're ready for it won't come and break you. But sometimes it just comes from some other place. You get distracted. Sometimes you feel that I have enough, but that's a very temporary feeling. You feel it, I have enough. कुछ दिन बाद फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं. बट एक होता है ना कि जैसे जितने साल बीत जाते हैं आपको पता है कि मैंने एक काम किया, गुड, पीपल लव्ड इट, गुड, पीपल लव मी, गुड. बट एक होता है ना, मेरे को पहले रियलिटी शो के बाद ही रियलाइज हो गया था, ठीक है कर दिया, बट ऐसा नहीं हमेशा उसी के लिए माना जाएगा. हाँ, फिर वो धीरे धीरे उस स्पेस में जाते हैं कि हाँ किया था, फिर अब क्या कर रहा है, ये नया क्या कर रहा है. वो 4-5 महीने बाद आपका वो फेम जो पहले ये था वो ये हो जाता है. तो आपको यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, आई थिंक सो. एंड इफ यू डोंट डू इट, इफ यू थिंक यू हैव डन इनफ, आई थिंक सो आपको 1-2 साल में अच्छा खासा रिग्रेट आ जाता है लाइफ में कि मैंने और मेहनत क्यों नहीं की. एंड स्पेशली इन टुडेज डेट, पहले क्या था, एक तरीका था शायद, एक अभी बहुत सारे तरीके हो गए बहुत बड़ा बनने के, तो उसमें आप तो ऐसा सोच ही नहीं सकते. मुझे नहीं पता आज के डेट में कौन ऐसा सोच रहा है कि भाई हम बन गए, रिलैक्स करते हैं. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी सोच रहा है. देयर इज कंपटीशन एवरीवेयर एंड एवरी फील्ड. मैंने बट कुछ लोग देखे सुमित, दे आर कंटेंट विद देयर लाइफ. That's a different field. You can be content with your वो भी hustle as well. वो एक तरीके से सक्सेस. Wherever they are, whatever they have done, they are happy, they are content with what's going on in their life, and they have accepted that. Exactly. And they are very, very, very happy. They're good at it also. They're good at it also. Very good at it. This is also, you know, a kind of a success, you can say. Yeah. They're in their head that we are not chasing anything. We are now. We have found that. उनका जुनून है कंटेंट रहने का. हाँ, वो जुनून वो भी है. Exactly. They're not, है ना? Greed. हमेशा आगे जाना ही सबका मोटिव नहीं होता है. नहीं होता. मैं कई बार मैं ऐसे दोस्तों से मिलता हूँ जो कुछ काम नहीं करते, मुझसे 10 गुना ज्यादा खुश रहते हैं. हाँ, ठहरे पड़े हैं, वो ठहरे हुए हैं. हम क्या है ना, हम भागे हुए हैं. हाँ, वो अपना सिंपल काम करता है, but he is very happy with his life. But again, that's what he chooses. He is happy. उसका ऐसा भाई सैटरडे संडे छुट्टी, मैं अपनी फैमिली, मैं अपने दोस्त, enjoy. But you know, this is the actual success. For every person. Yeah, as an individual. I think the one who have already achieved, उसके लिए ये success हो सकता है. So this is like when you're content in a way कि okay, now I am able to provide, you know, happiness. I am able to provide a good lifestyle to my family, to my future family also. Absolutely. So somewhere you feel content कि okay ठीक है, I have done. Right. Okay, I've come to a place from zero to somewhere where now I can see okay I'm stable. Correct. But आप सपने देखना तब तक नहीं बंद करते हो जब तक आपकी सांसें बंद नहीं होती. Correct. तो दैट जुनून और जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो हमेशा आपके बॉडी में होते ही है. और आप उसी को ही लेते हुए आज मैंने ये प्रोजेक्ट किया, इट बिकम सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर. Whatever the love and compliments I will receive, I will be thankful and I will be grateful. But now, what next? Let's do something else. Now let's try to give. Correct. So आपका एक nature बन जाता है कि now I am here to give, rather than taking it, receiving it. Evolution है. Yeah, I want to give. Right. So that giving nature आपके अंदर आ जाता है. That's it. Otherwise जो लोग होते हैं ना कि यार I have become a successful man, now I'll sit home कि ये कर ले वो, वैसा नहीं होता. वो आदमी ही सही नहीं होता. मुझे लगता है हर एक इंसान को अंदर ही अंदर पता होता है कि कब वो सक्सेसफुल है. और जब तक उसको वो सक्सेस फील नहीं होता वो नहीं रुकता. जैसे वो भागते रहते हैं. मैं एक एग्जांपल अपना ही देता हूँ. मुझे लगा था, तो मैं जहाँ से आते हैं हम सारे, हमने इतनी दुनिया नहीं देखी होती. फॉर एग्जांपल मैंने इतनी दुनिया नहीं देखी थी आज तक, ना ही मेरे माँ बाप ने देखी थी. उनको आइडिया भी नहीं. जमुना पार में, मैं जमुना पार से आया हूँ, तो जमुना दिल्ली में जमुना पार जगह है. तो जमुना पार में से बाहर जाना ही मेरे फादर के लिए होता था कि यार कैसे जाएंगे. ज्यादा वैष्णो देवी माता के दर्शन करने चले गए, नैना देवी चले गए, सालासर चले गए. वही जो भगवान के होते हैं, फैमिली चले जाते हैं, वही स्पॉट्स होते हैं हम जो पहले घूमे हुए थे. मैं तो मेरे लिए आज की डेट में, यस आई एम वेरी ब्लेस्ड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, यू टेकिंग माय इंटरव्यू, राइट. इतना बड़ा मीडिया हाउस आया इंटरव्यू लेने, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में बैठा हूँ, इन दोनों बड़े कलाकार के साथ बैठा हूँ, और बहुत बड़े कलाकार के साथ काम भी किया है जो शो में है हमारे साथ, हमारे सीनियर्स हैं. लेकिन मुझे लगता है ये तो है ही है, लेकिन मेरे माँ बाप को जब मैं बाहर दुनिया दिखाने लेके गया हूँ ना,
मुझे शायद कभी इतनी खुशी कहीं मिली ही नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो शायद मेरे लिए वो सक्सेस है। मैं शायद वो चीज ढूंढ रहा हूँ कि अगला मम्मा पापा को अभी, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी नहीं, दे आर गेटिंग ओल्ड नाउ, डैडी इज ऑलमोस्ट 60 नाउ, मम्मा इज आल्सो नाउ ऑलमोस्ट 55, सो मेरे लिए अब ये रहता है कि यार अब उस कंट्री में उनको ना लेके जाना है जब तक चल पा रहे हैं, बिकॉज देन ऑब्वियसली द ओल्ड एज इज गोना हिट, वो इतना घूम नहीं पाएंगे अभी, फिर भी मैं उनको ले चलता हूँ, घुमा लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे लिए वो ज्यादा बड़ी खुशी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम को भूल रहा हूँ अपने, नहीं, मैं काम कर पा रहा हूँ इसलिए तो मैं पैसे कमा पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने माँ बाप को भी लेके जा रहा हूँ। तो कंटेंट का मतलब ये भी नहीं होता कि हाँ कंटेंट मतलब खुश रहना बहुत जरूरी है, यू नो, टेम्परेरी खुशी को ढूंढना इतना जरूरी नहीं है जितना आपको परमानेंट खुशी क्या देती है वो है। जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेरी खुशी की बात कर रहा हूँ, ये शो 1 महीने के लिए है, आप हमारा इंटरव्यू लेने आए, ये शो खत्म हो जाएगा, हम बैठे हैं तैयार हो रखे हैं, एकदम से आप इंटरव्यू लेने आए हैं 1 महीने बाद ये शो का कभी ना कभी एक टाइम आएगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल जितना भी चला भगवान की दया से ये शो चला, आप भूल जाएंगे हमें, फिर आप अपने नए प्रोजेक्ट में चले जाएंगे, आप समझ रहे हैं, तो इट कीप्स गोइंग, जुनून नहीं खत्म होना चाहिए, हाँ जुनून नहीं खत्म हो जाना चाहिए, राइट। तो ये टेम्परेरी एक तरीके से हमें 1 महीने की खुशी मिल गई कि चलो आज मैं घर से बाहर निकला हूँ, 2 साल बाद आज इंटरव्यू दे रहा हूँ भाई, 2 साल बाद मीडिया हाउसेस आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो वो एक टेम्परेरी खुशी है। मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आप टेम्परेरी खुशी को ढूंढने की बजाय परमानेंट हैप्पीनेस देखिए लाइफ में, जो एक्चुअल हैप्पीनेस होती है, जो मैटर करती है। जैसे मैंने अपने माँ बाप को घुमाना, मुझे लगता है मेरे लिए वो परमानेंट हैप्पीनेस है। शो ये आएगा, हिट होगा, लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, वो एक मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मतलब हाँ, इट इज वेरी डिफरेंट एंड सब्जेक्टिव अगेन। यू गाइस हैव रीच्ड एक टाइप का फेम भी, नेम भी, और काफ़ी आप लोग सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो, हर जगह आप लोगों की बात होते रहती है। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब रोल अप्रोचिंग की बात आती है तो क्या आप लोग अब भी रोल अप्रोच करते हैं या रोल्स आते हैं आपके पास? दोनों तरफा है मेरे साथ, तो समझा नहीं मैं, वो कह रहे हैं कि do you approach the roles or the roles come to you? स्क्रिप्ट्स आती हैं, मतलब डायरेक्टर ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पिक्चर लिख रहा हूँ, काम करो या फिर आप जाते हैं सर मेरे लिए सर ऑडिशन है या कुछ है तो मुझे ऑडिशन दे दो, ऑडिशन डिपेंड करता है। सी व्हाट हैपेंस इज कि आप एक सर्टेन लेवल का फेम डेफिनेटली अटेंड कर चुके हो एक सर्टेन डिग्री तक, बट उस लेवल का ये नहीं है कि हमारे पहचान में और डेली कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई डायरेक्टर है और कोई प्रोड्यूसर है जो वो सोचे कि हम इनको लेके मूवीज बनाएंगे। ना हमने अब तक अपने आप को उतना एस्टैब्लिश कर दिया है, हालांकि हमें वो बात है, ये मैं कह सकता हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम अब तक एस्टैब्लिश कर चुके हैं अपने आप को। वैसे तो मेरा अगर कोई दोस्त है फॉर एग्जांपल, वो अगर आज के डेट में बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ बना रहा है तो वो मुझे अप्रोच करेगा डेफिनेटली, वो अलग चीज़ हो जाती है। अभी वो वैसा नहीं हो रहा है, बट हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ कैरेक्टर्स के लिए हमें अप्रोच किया जाता है कि हम आपके लिए, जैसे गोड्स का है जुनून का, ऐसा ही हुआ, हमें उन कैरेक्टर्स के लिए अप्रोच किया गया था कि हम आपको इस कैरेक्टर में ये करना चाहते हैं, और यूजुअली दोनों चीज़ें होती है एक ही टाइम पे, और जिसके लिए हमने ऑडिशन करते हैं, और ऑडिशन देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं ये बंदा इस कैरेक्टर के लिए ज्यादा सूट करेगा और ये बंदा इस कैरेक्टर के लिए ज्यादा बेटर है। जैसे तो आई थिंक इट्स बोथ द वे। हाँ, जैसे मतलब इसी शो में पहले 2021 में मेरी बात जब शो के लिए आए थे बात करने के लिए, 2021 वाज द फर्स्ट टाइम, तब सेबी की बात हो रही थी, मैं जब कैरेक्टर की बात करने आया था सेबी की, तो मैंने अब किया खुश है, सेबी नहीं किया, यू नो, व्हेन वी एक्चुअली शॉट सेबी, सुमेध ने किया, बट व्हेन आई रियलाइज दैट यू नो मैं भी शो में मैं यार सेबी मुझे करना था, सेबी मुझे करना, बिकॉज आई हैव दैट रिलेटेबिलिटी जो सुमेध भी कहता है, मेरी भी वो रिलेटेबिलिटी है सेबी को लेके वहाँ पे, तो मुझे लगा मैं शायद उसको कर सकता हूँ। बट देन अगेन यू नो directors also have their certain visions and the makers are also obviously very very smart. Sometimes we actors, we are just inside our head, we cannot see the third vision at times. When I worked on this, then I realized that how well Sumedh actually portrayed Sebi. शायद मैं वैसा नहीं कर पाता, you know, the Marathi, you know, that character, no, मैं मुझे लगता है कि अच्छा है मैंने नहीं, मैं कुश के लिए ही बना था, you know, कुश मैं better दे पाया, वो ज्यादा सेबी एक्चुअली कोई नहीं कर सकता जैसा तूने किया। हाँ वही वो सी इट इज अगेन यू नो वी ऑल हैव सेम गोस फॉर हिज कैरेक्टर विक्रम, फॉर हिज कैरेक्टर विद एक्सपीरियंस आल्सो, क्योंकि वो आपको पता चलने लग जाता है कि आई थिंक ये कैरेक्टर ये ज्यादा अच्छा कर पाएगा। हाँ आई मीन इट्स yeah I think it's the makers also, sometimes we have to trust. I don't know, I mean there is something about like the makers like everywhere in the world. We you know we have a very you know talented director
अभिषेक शर्मा, yeah. जिनका विजन Yes, sir. और इनका काम करने का तरीका बहुत ही शानदार Yes, है, sir. बहुत ही शानदार। मतलब वो आपको सेट पे कंफर्टेबल भी फील कराएंगे और Yeah. बताएंगे हाँ. कि आई बिलीव इन यू। Wow. एंड व्हेन जब आप एक्टर्स को Yeah, इतना trust फेथ करते हैं। और इतना ट्रस्ट देते हैं Correct. तो एक्टर खुद भी ना अपना 200% देता है। लगा देता है। सो अभिषेक सर बहुत ही ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी Wow. एंड अ ग्रेट डायरेक्टर टू वर्क विद। उनके साथ काम करते करते जेन्युइनली मैंने बहुत कुछ सीखा है एज एन एक्टर, जो मुझे लगता है मैं आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं वो अप्लाई करूँगा। Wow. और वो बहुत ही अच्छे से आई थिंक सबको बैठा के जब भी अगर इनके साथ शूट कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको भी आके अच्छी चीज़ें बताते होंगे। मेरे साथ शूट करते मुझे मतलब कि मेरे अंदर क्या Yeah. प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो आके क्योंकि वो मार्क कर सकते हैं क्योंकि ही इज द डायरेक्टर, ही नोज, ही सीज यू डिफरेंटली ओनली, उन्हें पूरी कहानी पता है। Right. तो उसी हिसाब से जब मैंने विक्रम को ऑडिशन दिया था और जब उन्होंने देखा तो दैट डे एंड दैट मोमेंट ओनली ही सेड कि ही इज माय विक्रम एंड आई वाज लाइक थैंक यू। मुझे भी ऐसी हर एक actually character अभिषेक को sir had that clarity. इन डेप्थ समझाएं हर एक हाँ character यार, को। he had that clarity that you are no. मुझे याद है अभिषेक सर से when things didn't मतलब get अगर आप locked उस ना, वक्त ऐसे जाओगे कि सर प्लीज मुझे ये करना है, नहीं, नहीं, यू he आर knows it. Like I'll tell you, आर सेबी। जब तक लॉकिंग्स नहीं हुए थे मैं सुमित से भी नहीं मिला था, सिद्धि का तो पता ही नहीं था तब तक शो में है नहीं है। मैं तो बहुत लास्ट में आया हूँ। अगस्त सितंबर की बात है 2023। आई रिमेंबर टॉकिंग टू अभिषेक सर एंड द मेकर्स आल्सो। हाँ. तब मैं बोलता नहीं मुझे सेबी करना है। ही इज लाइक नो यू आर माय कुश। आदि आल्सो वाज जस्ट सो एडमेंट, नहीं सेबी नहीं, नो हाँ. सेबी, यू आर माय कुश एंड प्लीज रीड द स्क्रिप्ट, यू विल अंडरस्टैंड। एंड देन ऑब्वियसली मैंने पढ़ा फिर स्क्रिप्ट, मैंने कहा नहीं एक्चुअली That's nice. these guys are right. खुश नहीं तो मेरा एक सेबी से रिलेटेबिलिटी है, बट अगेन एज आई एम एन एक्टर, I am always on for challenges. I'm always not. We are as an actors, we are not always looking for relatability also. Right. We sometimes have to act. Yes, relatability मिलती है तो easy हो जाता है हमारे लिए प्रोसेस कहीं ना कहीं वो डिलीवर करना। बट खुश के लिए मेरे साथ ऐसा था कि काफी चीजें अलग हैं, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन थिंग्स जो आप पहले शो देखिए। फिर हम ये पहली बात इंटरव्यूज, आर दीज इंटरव्यूज गोइंग आउट No, after it's the not release, going, it's not before the going. show, so we cannot say a lot of things. After the trailer. Yeah. ट्रेलर कैसा लगा चीजें नहीं आपको? बोल सकते। Full of craziness. आज But आपने we'll trailer quickly देखा go actually? to a game because we have very less Yes, time. yes, yes, Okay, yes. it's Let's go. the game called Dream, Dare and Dominant, and we have the questions for each. For Dream के लिए एक question है, Dare के लिए एक question है, and Dominant के लिए एक question है, ठीक है? So we'll go in this way. What was your earliest Bollywood dream? मुझे तो सो थोड़ा टाइम ले सकता हूँ इस चीज के लिए, 2 मिनट ले सकता हूँ दोस्त? चलो मैं तब फटाफट तक- मैं आंसर तब करता तक next हाँ, जाते तब हैं, ये बोल। हाँ. फर्स्ट बॉलीवुड मतलब टीवी लेट्स से कि हाँ, क्या है, हाँ. तो मैं एक रियलिटी शो की स्टेज पे जाके ऑडिशन देना चाहता था। फिर अगला ड्रीम था फाइनल्स में जाना, फिर उसके बाद का ड्रीम था जीतना, वो नहीं हो पाया पूरा। फिर ऐसा हर बार ड्रीम ऐसा अपग्रेड होता गया। हो सकता है, और ढूंढते होता है कभी-कभी. What was yours, Siddharth? मेरा सपना और मेरा ड्रीम ना स्टार्टिंग में यही था, टू विन अ ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर माय कंट्री क्या बात है। इन जिम्नास्टिक्स, जो मैं डेफिनेटली नहीं पूरा कर पाया, बट डेफिनेटली मेरा अभी भी वो ड्रीम है टू समवेयर थ्रू मी आई कैन प्रमोट जिम्नास्टिक्स globally, that in India there are good gymnasts. We just need good facilities, good coaches, good training, and then you see from India, Indian gymnasts will go and win Olympic gold Right, medals. absolutely. So that is one dream. Good one. मैं ड्रीम के बारे में बात करूँ तो मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। मैं 17 साल का था, शामक डाबर की कंपनी में था और दिल्ली में एक शो था। आई थिंक ये जो नहीं होते, मैं जो इलायची वाली जो होती हैं एड्स आती हैं, इलायची, ओके मैं नाम नहीं लेता, Okay. ब्रांड्स नहीं, इलायची की जो होती हैं एड्स, उन्हीं की Okay. किसी थी शादी थी बहुत बड़ी, तो मैं एज अ डांसर परफॉर्म कर रहा था और आई थिंक होंगे कुछ 50 डांसर्स हम। तो मैं आखिरी लाइन में डब्बे थे, मैं डांस भी नहीं कर रहा था, डब्बों पे चढ़ा हुआ था सितारा लेके। 18 साल का था एक्चुअली मैं, 18, आई वाज नॉट 17, आई वाज 18 बैक देन। वो लेके ना बस ये स्टेप चलता था मेरा और बीच में ना एक स्टार परफॉर्म कर रहा था उस शादी में, वो थी जैकलीन फर्नांडिस। वाओ, Cut to, I'm 32 now. walking And and I have- dancing. A song with Jackie, we are sharing a Yeah. song together. We've done a song. Dreams do come true. यस So dreams do come true is what I. तब मैंने सोचा था कि यार वो जो उधर जैकी खड़ी है ना, उसके साथ बीचों बीच नाचना है।
यहाँ से जो आखिरी लाइन में है ना प्रियांक शर्मा, एक 18 साल का प्रियांक ने तब सोचा था, मुझे याद है, यहाँ से उठ के कैसे उधर सेंटर में वो जो खूबसूरत सी परी है मेरे सामने, मैं कैसे नाचूं इसके साथ यार। गुड वन। लग गए 15 साल पर कर दिया, बट वेरी गुड। Nice. So next we go to Dare. Have you ever turned down a safe role for something bolder? So can you repeat? Have the you name? ever turned down a safe role? Yes, Kush. People will get to Why know. you guys will get to know? Why you guys will get to know? Yes. मतलब कुछ तो सेफ छोड़ के बोल्ड कुछ उठाया है ऐसा। मैं अभी तो मतलब definitely this show only Vikram, because I'm not a professional singer, so I had to do a lot of practice. क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी मैं करूँ तो वो फेक लगे. I wanted to give that real authenticity to the character. So I used to do रियाज every day, because जो भी आलाप आप सिंगिंग में जब करते हैं तो वो आलाप जेन्युइन और रियल लगने चाहिए. तो आपको पता होना चाहिए कि वो आलाप कैसे खींचा जाता है, क्या किया जाता है, आपका जो मूवमेंट है वो कैसा होना चाहिए. तो मैं जेन्युइनली अपने दोस्त के साथ बैठ के, एज अ म्यूजिशियन, बैठ के मैं रोज़ 1-1 घंटा उसके साथ प्रैक्टिस करता था, रियाज करता था और गिटार प्रॉपरली सीखने की कोशिश कर रहा था. That's it. तो अब सिंगर बन चुके होंगे. नेक्स्ट गाना गवाएंगे तुझसे. What about you? I think your question, the bold, Yeah. that word, do you refer it to something else or just something tougher? Tougher. Okay. Yeah. So I think I never wanted to play safe. I never played safe. Like my journey always has been कुछ तो उल्टा सुल्टा अलग थोड़ा. And I like it that way. Like I started with D3 and then I did negative with Siddharth Ashoka. And then I waited for the right time. Then I did a few psycho characters. Like it comes on this side. Then I played Krishna, which was on this side. And इसमें सब चीज़ों में वो कॉम्प्लेक्स था ही, मतलब मुश्किल था ही. क्योंकि आप सोचो कि आपने ये किया है, उसके बाद अगर ये आप नहीं कर पाओ तो जो उसके बाद आपको सुनने पड़ेगा ना कि यार ये क्या है, किसको लिया ये आपने, क्यों. अब वो तो है, रिस्क है, बट करना वही है. कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स ही अच्छे लगते हैं मुझे, सेफ नहीं अच्छे लगते कैरेक्टर्स मुझे. कुछ तो तूफानी करनी है. तूफान मतलब डिफिकल्ट हो, क्योंकि मैं आया ही मतलब सिंस अ यंग एज आई हैव बीन वर्किंग, तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू. आई कांट नॉट वर्क. और तूफानी करने में मजा भी आता है. करेक्ट. लास्ट डोमिनेंट में जाएंगे हम. डोमिनेंट में हाउ डू यू डिस्क्राइब डोमिनेंस इन द इंडस्ट्री? That's a tricky question now. Dominance is not about taking anybody down or saying that I am above or saying that no. Dominance is about taking the lead for real when you see everything is scattered. How a person can handle himself or herself in that particular moment, when especially when you have a crew. I'm talking about from a show's perspective. जैसे मिसफिट्स की मैं बात करूं, जो हमारा क्रू है, उसमें अगर सब कुछ बिखर गया है क्रू में, डोमिनेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं अब कैसे बोलूं ये कर, चल नीचे बैठ, नहीं. That is not dominance. Is no. Dominance is about understanding. वहाँ कोई बैठ गया सच में. सिंगर आवाज बेचारा डर गया होगा मेरी आवाज सुन के. So dominance I feel is about understanding, what's going on for real, finding a solution to the situation, and then solving it. Right. I think that is a true form of dominance. I feel for me. Good. That's right. I think so. Dominance एक ऐसी चीज़ है, जैसे अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, शायद डोमिनेंस एक ऐसी चीज़ मुझे लगता है कि रियल वे में डोमिनेंस वो है जो एक जगह से सबको पता रहे, सबके दिल को वो छू ले. फॉर एग्जांपल किसी का परफॉर्मेंस या कोई मूवी जो कहते हैं सही तरीके से अगर डोमिनेट कर रही है तो वो सबके दिल पे राज अगर कर रही है ना, और कम से कम लोगों को उसको नीचे गिराने की इच्छा है मन में, तो आई थिंक दैट्स द राइट काइंड ऑफ डोमिनेंस. क्योंकि उन्होंने डोमिनेट कर लिया अपने प्यार से, वो एक सही डोमिनेंस मुझे लगता है. बाकी तो आई थिंक समवन हु इज रूलिंग कैन बी अ गुड, नॉट जबरदस्ती नहीं, मतलब दिल से लोग चाहते हैं कि वो रूल करें. दैट्स द काइंड ऑफ डोमिनेंस दैट आई थिंक सो इज आइडियल. अपने काम और अपने नेचर से जो डोमिनेट करते हैं, आई थिंक दैट इज द डोमिनेशन आई ऑल्सो वांट इन माई लाइफ, कि वेयर आई कैन
not in a bad way that I'm dominating any person or dominating anything. I am just there where I am representing my country in a way that the country look up to me. You know, this guy will come and this guy will dominate. This guy will do this and that. Like how we have that kind of personalities. Right. Yeah. You know, Shah Rukh sir, Dominance is Salman sir, all of you Yeah, know yeah, sorry. these personalities somewhere they dominate in a right way. exactly. You know, जब कुछ चीजें नहीं थी चल रही थी, जब you know, They came and ruled it. yeah, yes. जब बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स नहीं आ रहे थे, तो how Right. शाहरुख सर came Ah. and you know More सबको उन्होंने than- बता दिया कि I am the king, The man, king. I am the king. More than ruling, That is a good dominance. more than ruling or anything else, I feel it's a bigger game. Dominance, for me, it's a bigger game. It's not about ruling. It's not about. No, it is not about that. It is about, you know, being that ray of light in that darkness, that one spot, you know, where people will see कि सब जगह अंधकार है, अंधकार है, अंधकार है, और एक रोशनी दिखी, किरण की रोशनी है यहाँ पे चेहरे पे. अब फिर वो आपको लीड करते हुए और आप फिर सब चीजों को, you know, उस Right. तरफ लेके खींचता हुआ, खींचते correct, जाते. So I think that is dominance for me. Yes. That's it. Thank you so Thank you. much, guys. Thank you, and I Jay. wish you good luck for this project and Thank you so every much. project in future. Thank you so much for doing this.